अस्मद्वैरिविनाशनम् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वनित्यवन्दे இறைவா போற்றி ஆதிபராசக்திக்கு ஜெய் ஸ்ரீ ராமலிங்க ஜோடேஸ்வரி அம்பிகைக்கு ஜெய் விக்ன விநாயக மூர்த்திக்கு ஜெய் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோஹரா. அன்பான பக்தபரி என்பவர்களே, எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளாக விளங்கக்கூடிய பார்வதி பரமேஸ்வரன் தனிப்பெரும் கருணையினாலே அவனருளாலே அவன்தாள் வணங்கி என்கின்ற வாக்கியத்திற்கு இணங்க நமக்கெல்லாம் இன்றைய தினம் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்று மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி நடந்த இந்த அற்புதமான திருநாள்ல அற்புதமான மாலை வேளையில திருவிளக்கு பூஜை, தீப பூஜை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அனைத்து விதமான மங்களங்களையும் தரவல்லவள் தீப மகாலட்சுமி. பெண்கள் சுமங்கலிகள் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் இந்த தீப பூஜை பண்ணா அவ்வளவு ஒரு விசேஷம் உண்டு. இன்னைக்கு அம்பாளுடைய அனுகிரகம் நமக்கு வெள்ளிக்கிழமையாகவும் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான நாள்ல அம்பிகைக்கு, அம்பிகையினுடைய சன்னிதானத்திலே, ஆலயத்தின் வளாகத்திலே அழகாக உற்சவமூர்த்தி அம்பாளை அலங்காரம் பண்ணி அந்த அம்பாளுக்கு எதிரில் உட்கார்ந்து தீப பூஜை செய்யக்கூடிய ஒரு அரிய வாய்ப்பு நமக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. அதுலயே ரொம்ப விசேஷமா என்னன்னா, லலிதா சஹஸ்ரநாமம் என்று சொல்லக்கூடிய அம்பிகையினுடைய 1000 திருநாமங்கள். அம்பிகைக்கு பல திருநாமங்கள் உண்டு. அதுலயே ரொம்ப விசேஷமானது இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமம் என்று சொல்லக்கூடிய 1000 திருநாமங்கள். இதை பத்தி ஒரு 5 நிமிஷம் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை பத்தி சிந்திப்போம். பிற்பாடு விளக்க பூஜையை துவங்குவோம். ஒவ்வொரு ஸ்தோத்திரங்களும் யாரோ ஒருத்தர் எழுதியிருப்பாங்க. வேதங்கள் மாத்திரம்தான் யாராலும் எழுதப்படாது. வேதங்களும் சைவ ஆகமங்களும் எவராலும் எழுதப்படாது, பரமேஸ்வரனால் அனுகிரகம் செய்யப்பட்டது. மற்ற அனைத்து ஸ்தோத்திரங்கள், துதிகள் எல்லாமே யாரோ ஒரு மனிதர்களோ தேவர்களோ ரிஷிகளோ யாரோ ஒருத்தர்னால எழுதப்பட்டதா இருக்கும் எல்லா விதமான ஸ்தோத்திரங்களும். அதே போல இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரம் என்கின்ற ஸ்தோத்திரமானது வசின்யாதி வாக்தேவதைகள் என்று சொல்லுவார்கள். அம்பாள் ஒரு தரம் இந்த மக்கள்லாம் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்களே, உலகத்துல பிறந்து வளர்ந்து எல்லா விதமான துன்பங்களையும் அனுபவிச்சு மறுபடியும் இறந்து மறுபடியும் இன்னொரு ஜென்மா எடுத்து மறுபடியும் பிறந்து வளர்ந்து இந்த மாதிரி இந்த ஜென்ம சம்சாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பிறவி பெருங்கடல். அந்த பிறவி பெருங்கடல்ல மாட்டிண்டு இந்த உயிர்கள்லாம் துன்பம் அடைகிறாங்களே, இந்த உயிர்களுக்கு இந்த துன்பத்தில் இருந்து விமுக்தி, மோட்சத்தை தரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறாங்க. அப்படி ஆசைப்படும் போது அம்பாளுடைய சேவைகளாக இருக்கக்கூடிய, அம்பாளுக்கு தினசரி சேவை புரியக்கூடிய தேவதைகள் பல தேவதைகள் உண்டு. அதுல வசினி முதலிய வாக் தேவதைகள், வாக் அப்படின்னா வாய், மந்திரங்கள், வாக் பலித்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதற்கு உண்டான தேவதைகள். அந்த தேவதைகளை அழைத்து இந்த ஆன்மாக்கள்லாம் கஷ்டப்படுது, இந்த ஆன்மாக்களுக்கு நல்ல வழி பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை, என்ன குறிச்சு ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி அம்பாள் அனுகிரகம் பண்றா. அந்த அனுகிரகத்தின் பேர்ல அந்த வசினியுடைய வாக்தேவதைகள் இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை உருவாக்குறாங்க, எழுதுறாங்க. அந்த வசினியுடைய வாக்தேவதைகள் என்னதான் தேவதைகளாக இருந்தாலும் கூட
பிரம்ம விஷ்ணு ருத்ரர்கள் போன்ற பெரும் தெய்வங்களுக்கு அடுத்த நிலையில இருக்காங்க. இந்திரன் அக்னி போன்ற தெய்வங்களுக்கு அடுத்த நிலையில இருக்காங்க. அந்த அடுத்த நிலையில இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களால எழுதப்பட்ட ஸ்தோத்திரத்தை எல்லாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. எப்பவுமே ஒரு வீட்டுல கூட உண்டு இல்லையா, அப்பா இருக்காரு, பையன் இருக்காங்க. பையன் ஒரு விஷயத்த சொன்னா சில அப்பா ஏத்துப்பாங்க, சில அப்பா நீ என்னடா சொல்றது, நான் என்ன கேட்கறது அப்படின்னு. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சர்ச்சையும் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக எல்லாரும் கூடி இருக்கக்கூடிய சபை, அந்த சபை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துடைய பூர்வ பீட்டிகைன்னு உண்டு. லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துக்கு ஆரம்ப ஒரு கட்டம் உண்டு. அதுல சொல்லும் பொழுது சரஸ்வத்யா சகிதாக பிரம்ம கோட்டயா, லக்ஷ்மியா சகிதாக விஷ்ணு கோட்டயா, கௌரியா சகிதாக ருத்ர கோட்டயா. அப்படின்னா கோட்டின்னா நமக்கு தெரியும், தமிழ்லயும் சம்ஸ்கிருதத்திலே ஒண்ணுதான். கோட்டின்னா லட்சம், கோட்டின்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணிக்கை, கோடி. அந்த மாதிரி கோடி சரஸ்வதிகளோடு கூடிய கோடி பிரம்மாக்கள் வந்திருக்காங்க. கோடி விஷ்ணுக்கள், லக்ஷ்மிகளோட கூடிய கோடி விஷ்ணுக்கள் வந்திருக்காங்க. கோடி கௌரிகளோட சேர்ந்த கோடி ருத்ரர்கள் வந்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி இந்திரன் அக்னி போன்ற பல விதமான தெய்வம். இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, உலகம் ஒண்ணு இல்ல. இப்ப சயின்ஸ்ல எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, இந்த ஒரு சூரிய குடும்பம் இல்ல, இன்னொரு சூரிய குடும்பம் இருக்கு அப்படின்னு இப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நம்ம உலகம் மாதிரியே இன்னொரு உலகம் இருக்கு அப்படின்றத இத்தனை காலம் கழித்து நம்ம ஆங்கில ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆனா நம்முடைய முன்னோர்கள் அது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, புத்தகத்துல எழுதிய வச்சிருக்காங்க. அதான் ஒவ்வொரு உலகத்துக்கும் ஒவ்வொரு பிரம்மா, ஒவ்வொரு விஷ்ணு, ஒவ்வொரு ருத்ரன் அப்படின்னு வரும்போது கோடின்ற எண்ணிக்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் எங்க வாத்தியார் சொல்லுவார். கோடின்னா வெறும் கோடின்னு கணக்கு பண்ணக்கூடாது, எண்ணிக்கையில் அடங்காத எண்ணுக்கு கோடின்னு அர்த்தம். அப்போ எண்ணிக்கையில் அடங்காத உலகங்கள் இருக்கு, அதுக்கு பிரம்ம விஷ்ணு ருத்ரர்கள் இருக்காங்க. அவங்க அத்தனை பேரும் இந்திராதி தேவர்கள் அத்தனை பேரும் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. அந்த சபையில இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமமானது அரங்கேற்றப்பட்டது. எல்லாருமே ஒரு அரங்கேற்றம் ஒண்ணு உண்டு இல்லையா, அந்த அரங்கேற்றம் நடந்தாதான் அதை எல்லாரும் ஒத்துப்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமமானது அந்த பெரிய சபையில அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டு அன்றைய தினம் முதல் இன்றைய தினம் வரை அனைத்து விதமான தேவர்களாலும் பிரம்ம விஷ்ணு ருத்ர போன்ற மும்மூர்த்திகள், அது மட்டும் இல்லாத இந்திரன் அக்னி யமன் நிருதி போன்ற மற்ற இந்திராதி தேவர்களும் இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை தினந்தோறும் பாராயணம் செய்கின்றார்கள். விசேஷ காலத்திலே நாமாவளியாக அர்ச்சனையும் செய்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தினுடைய பூர்வ பீட்டிகை ஆரம்ப பேச்சுல வரும். இதுல இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமம் நமக்கு எப்படி கிடைச்சது? அவங்க எல்லாம் பாராயணம் பண்றாங்க, தேவர்களுடைய சபையில தானே இது அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டது. இது எப்படி நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, ஹயக்ரீவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தேவர், யாருன்னா விஷ்ணுவுடைய அம்சம், குதிரை முகமும் மனித உடலும் கொண்டவர் அந்த அயக்ரீவன். அந்த அயக்ரீவ பெருமான் ஒரு இடத்துல இருக்கும் பொழுது அகஸ்தியர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிஷி உண்டு. அந்த அகஸ்தியர் தான் தமிழுக்கு முதன்மையானவர். அவர் எழுதின அகத்தியம்ன்ற புத்தகம் தான் தமிழுடைய இலக்கண புத்தகங்கள்ல முதல் புத்தகம். அந்த தமிழுக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் அகஸ்தியர் நிறைய தொண்டாற்றிருக்கார். அந்த அகஸ்திய ரிஷி அயக்ரீவர் என்று சொல்லக்கூடிய விஷ்ணுவுடைய அம்சமாக இருக்கக்கூடிய தேவதைகளிடத்துல அப்படி கேட்கிறாரு. அம்பாளுடைய விசேஷங்கள், அம்பாளுடைய கதை, அம்பாளுடைய ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாமே எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஹயக்ரீவர் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாராம். அம்பாளுடைய மூலமந்திரம், மாலாமந்திரம், எல்லா ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாமே சொல்லிட்டாராம். கடைசியா இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை மட்டும் சொல்லவே இல்லையா. அப்ப அவருக்கு அகஸ்தியருக்கு டவுட் வருது, என்னப்பா இதுல எல்லாமே எனக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க, அம்பாளுடைய கதையெல்லாம் எல்லாமே சொன்னீங்க, சந்தோஷம், ஆனா லலிதா சஹஸ்ரநாமம்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அது மட்டும் எனக்கு சொல்லியே தரலையே, அது கேட்கக்கூடிய தகுதி எனக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்பதான் ஹயக்ரீவர் சொல்றாரு,
தகுதி எல்லாருக்கும் உண்டு. அது ஒவ்வொன்றுக்கும் காலம் வரணும். இது வந்து லலிதா சஹஸ்ரநாமம் மந்திரங்களுக்கெல்லாம் ராஜா, மந்திரராஜம் அப்படின்னு பேரு. உலகத்துல என்னென்ன மந்திரங்கள் இருக்கோ அந்த மந்திரங்களுக்கெல்லாம் தலையாய மந்திரம் இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமம். இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை கேட்காம ஒருத்தருக்கு கொடுக்க கூடாது. வா நான் அவனுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லி உட்கார சொல்லி தரக்கூடாது. அவங்களுக்கா விருப்பப்பட்டு நான் எங்க லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை கத்துக்கணும் அப்படின்ற ஆசை குரு கிட்ட போய் கேட்கணும். நான் இந்த மாதிரி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை கத்துக்க போறேன், எனக்கு சொல்லி கொடுங்கன்னு யார் கத்துக்க விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்களா கேட்கணும். அப்படி கேட்கும் போதுதான் சொல்லி தரணும். நானா சொல்லி கொடுத்தா அதுக்குண்டான ஒரு மகத்துவம் உங்களுக்கு தெரியாது. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, நமக்கு தானமா ஒரு பொருள் வருது, ஒரு மோதிரமோ ஒரு பெரிய தங்கம் வைரம் வைடூரியம் ஏதோ ஒரு பொருள் தானமா வந்துருக்கு. நமக்கு அதனுடைய மகத்துவம் தெரியுமா? அப்படியே குப்பை மாதிரி போட்டு வச்சிருப்போம், வீட்டுல அப்படியே வச்சிருப்போம். அதே நம்ம கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அதனுடைய மகத்துவம் நமக்கு தெரியும். அது என்ன பண்ணுவோம், வீட்டுல பீரோல 10 ரூபா பூட்டி வச்சோம். அதே போல இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமமானது சுலபமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடாது. கஷ்டப்பட்டு நம்ம குரு கிட்ட போய் உட்கார்ந்து பொறுமையா இதை கத்துக்கணும். அப்படி அந்த அகத்தியர் ஹயக்ரீவர் அப்படின்ற தேவர்கிட்ட கத்துட்டு அதன் மூலமாக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ரிஷிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் அனைவருக்கும் இதை பரப்பினார் அப்படின்னு சொல்லி இதனுடைய லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துடைய கதை எல்லாம் அற்புதமான வாய்ப்பு. இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாம மந்திரமானது எல்லாருக்கும் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்காது, சில பேருக்கு தான் கிடைக்கும். அந்த சில பேர்ல நீங்க எல்லாருமே ஒருத்தரா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கும் பொழுது அம்பாளுடைய அனுகிரகம் தான். இந்த வாத்தியார் சொல்லுவார், பெண்கள் எல்லாருமே அம்பாள் தான் இருக்காங்க. அம்பாளுக்கும் பெண்களுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. இந்த மாதிரி பெண் தெய்வங்கள் நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. அம்பாளுடைய சபையில லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை அர்ச்சனை பண்ண போறோம். நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து தீப பூஜையை பண்ணிட்டு, தீப பூஜையினுடைய தொடர்ச்சியாக மூலஸ்தானத்திலையும் அம்பாளுக்கு லலிதா சஹஸ்ரநாமம் அர்ச்சனை பண்ண போறோம். சிவாச்சாரியர் வச்சிருக்கார். இங்க பிரதான தீபமாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளுடைய தீபத்திற்கும் லலிதா சஹஸ்ரநாம அர்ச்சனை, அதனை தொடர்ந்து விசேஷ தீபாராதனைகள், பிரசாதம் வழங்குதல், அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் நடக்கும். தொடர்ச்சியாக வாத்திய நன்னிசை இசை கச்சேரியும் நடக்கும் அப்படின்றதையும் இந்த நல்ல தருணத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறோம். எல்லாரும் இருந்து பொறுமையாக தரிசனம் செய்து நன்னிசை, ஏன்னா அம்பாளுக்கு கானப்பிரியா அப்படின்னு ஒரு பேர், மகா சங்கீத ரசிகா அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துக்கு நிறைய பெயர்கள் வரும். அதுல மகா சங்கீத ரசிகாதி நமஹா அப்படின்னு, சங்கீதம்னா அவ்வளவு பிடிக்குமா அம்பாள். அதனாலதான் நம்முடைய முன்னோர்கள் எந்த நிகழ்ச்சி சுப நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் கூட இந்த நாதஸ்வர தமிழ் நன்னிசையினுடைய துவக்கத்துலதான் அந்த நிகழ்ச்சியை துவங்குறாங்க அப்படிங்கிறது முன்னோர்களுடைய வழிகாட்டுதல். அதன் பிரகாரமாக இந்த நல்ல இசையையும் எல்லாரும் கேட்டு அம்பாளுடைய அருளுக்கு பாத்திராகும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக பூஜைகளும் துவங்குகின்றோம். நம பார்வதி பதலே ஹர ஹர மகாதேவா. என்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எல்லாத்தவர்க்கும் இறைவா போற்றி.
பின்னாடி உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு ஐடியா பண்ணுங்க அது அவனே மேலே देवानां गमनार्थं राक्षसां गुरुखण्डारमं तत्र देवता क्वाणलाञ्छनं ध्रुवन्ते राजावर्णो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं दरिद्रस्ताग्निस्तराट्टन्धारदतां ध्रुवं पर्वतदिवाविराजलिः इन्द्रदेवेह ध्रुवद्दृष्टा इहराक्रमधारद अभिदग्धप्रदन्यतः अचरे सन्तुषद्रवः इन्द्रदिववृत्कातिष्ठा देवीं वाजमदनन्ददेवाः तां विश्वरूपा प्रसवो वदन्ति तानो मन्त्रे नमोर्जन्वहाना धेनुर्वागस्मान् प्रदक्षतेतो आरम्भमुहूर्त शुभमुहूर्तोऽस्तु भवन्तो महान्तो नन्दो शुभमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु आसंज्ञा शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं धनुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानारण्यान् गुरुभ्यो नमः नमोपात्त समस्त त्रिदक्षेद्वारा परमेश्वराज्ञदा परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं स्थिरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव गौरीपते इन्द्रयुगं स्मरामि अद्य करिष्यमानस्य कर्मणः निर्विघ्नेन प्रथमान्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये अक्षतान् उतरतो निरस्य अवौपस्पृश्य सकलीकृत्य विश्वाचार्य विघ्नेश्वर पूजை பிள்ளையார் பூஜை பண்ண போறாங்க மஞ்சள் விநாயகர் பூஜை எதுக்காக மஞ்சள் விநாயகர் பூஜை பண்றதுன்னா இந்த தீப பூஜையில எந்த ஒரு தடங்களும் இருக்கக்கூடாதுன்னு முதல்ல பிள்ளையார் பூஜை பண்ணாங்க பக்தர்களுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கடமை அப்படின்னா விநாயகர் பெருமான மனசால பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க தீப பூஜையில அவங்கவுங்க தனித்தனியா தீப பூஜை பண்ண போறோம் இல்லையா ஆனா இங்க பிரதானமா இருக்கக்கூடிய தீப பூஜைக்கு பிள்ளையார் பூஜை பண்றோம் அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா விநாயகர் பெருமான மனசால வேண்டிக்கணும் நாங்க செய்யக்கூடிய தீப பூஜையில எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம நல்ல முறையில இந்த தீப பூஜையானது நடைபெறணும் தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம மென்மேலும் வளர்ச்சி ஏற்படணும்னு விநாயகர் பெருமான பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க கணபதயே நமஹா அப்படிங்கிறது விநாயகர் பெருமானுடைய மந்திரம் திருமந்திரம் அந்த கணபதயே நமஹா அப்படின்ற மந்திரத்தை உங்களால எத்தனை முறை முடியுமோ இந்த பிள்ளையார் பூஜை முடிகிற வரையும் மனசாலேயே சொல்லிட்டே இருக்கும் கணபதயே நமஹா எல்லாரும் சொல்லிட்டே இந்த பூஜையை பார்க்கணும் सकलीकृत्य सामान्यार्जन संसाध्य रजपात्रे गंध पुष्प अक्षतैः अभ्यर्च्य प्रणवेदत्वान् पूज्य देवाभिमन्त्रितमख्यावन्ध्य धेनुत्रयान्ते कृतेन रजमात्मानं गणपतिबिम्बं प्रोक्ष्य गणपतिबिम्बं संस्थाप्य अनन्तानमं धर्मानमः ज्ञानानमं निराज्यानमः ईश्वरानमं पद्मानमः ओं गणपत्यासनानमः ओं गंगां गणपतिमूर्तये नमः गंगाधरं श्यामलिवं गणेशं गुडारं श्रीनोद्भगाभ्यां सलज्जगं दशवरक्राभ्यां पमेन्द्राभ्यां तदधानमेरे गांग्लुब्जादेहा नमः उम्लुं नेत्रेभ्यो नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविकवीनामभवश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्रवणोदुरश्रीदसादनं गणपतिं मूलमन्त्रेणावाक्य आवाहनस्थापन सन्निधानसंनिरोधन तालत्रयनिबन्धन अवकुण्ठनधेनु पासाङ्कुसमुद्राः पुदर्श्य
नमस्सुदा स्वाहान्तेन पाठ्य आचमनीय अध्यानत्वा स्नानादिपदानानि विधाय गन्ध पुष्प अक्षतैः अभ्यर्च्य पुष्पमालिकां समर्प्य पुष्पैः सम्पूज्य ओम सुखाय नमः ओम जयकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गरगण्डकाय नमः ओम लंबोदराय नमः गणाध्यक्षाय नमः ओम भालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम मकरतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्भाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पार्चनं समर्पयामि महागणपतिमस्तु महागणपतये स्वाहा धूपमाग्रापयामि दीपान्ते अक्षतानि समर्पयामि कदली फले ताम्बूलस्य निवेदयामि वेदान्त आचमनीयं समर्पयामि ओम जगन्नाथ समर्पयामि विरक्षां धारयामि मूलमन्त्रं यथाशक्ति जप्त्वा तद्दशांशतः ब्रह्माङ्गानि जप्त्वा समर्प्य प्रार्थ्य वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गणेश पाहि मां श्री गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां श्री गणेश रक्ष मां वज्रपाणि वन्दितं शूलपाणि नन्दनं वज्रपाणि वन्दितं शूलपाणि नन्दनं दण्डपाणि पूर्वजं दण्डपाणि नाश्रये दण्डपाणि पूर्वजं दण्डपाणि नाश्रये अपाम्बते वर्षितं वायुपते वीरितं अपाम्बते वर्षितं वायुपते वीरितं पशुपते हास्यकं गणपति नाट्यकं पशुपते हास्यकं गणपति नाट्यकं आकुवाहनं मासपूरकं आकुवाहनं मासपूरकं विघ्ननायकं चिन्तयाम्यहं श्रीविघ्ननायकं चिन्तयाम्यहं श्रीगणेश पाहि मां श्रीगणेश रक्ष मां श्रीगणेश पाहि मां श्रीगणेश रक्ष मां श्रीगणेश पाहि मां श्रीगणेश रक्ष मां शिवाद्रिचित्रम्बलं दिव्यजम्बलं मैथिलरत्तनैयाने मुगत्तिने இந்தின் இளம்பிறை பொருந்தீற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞானக் கொழுந்தினை கொண்டையில் வைத்தறி பொட்டு கொண்டோனே திகழச் சக்கரச் சண்முகம் மைந்துளான் சகடச் சக்கரத் தாமரை நாயகன் அகடச் சக்கர விண்மரி ஆகுரை விகடச் சக்கரன் மெய்ப்பதம் போற்றுவான் அனதாபுதா மகாகணபதி சுப்ரீதோ சுப்ரசன்னோ வரதோ பவது எல்லாருமே கூட கை கூப்பிக்கோங்கம்மா. உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம், குல தெய்வம், அப்பா அம்மா, முன்னோர்கள், விநாயக பெருமான் எல்லாரையும் மனசால பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் भिडवे भवरोगिणां निधने सर्वविद्यां दक्षिणामूर्तये नमः. सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः. इष्टदेवताभ्यो नमः. कुलदेवताभ्यो नमः. मातापिता चरणारविन्दाभ्यां नमः. எல்லாரும் விநாயகர் பெருமானை வேண்டிட்டு பிள்ளையார் கூட்டிக்கணும். தலையில 5 தடவை கூட்டிக்கணும். சுக்லாம் வரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் ध्यायेते सर्वविघ्न उपशान्तये. ஆச்சார்யா பிராணாநாதன்ய. எல்லாரும் வலது தொடை மேல, வலது கை மேல, இடது கை கீழே வச்சு ममोपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा परमेश्वर आज्ञया परमेश्वर प्रीत्यर्थम स्वाप्त
शुभाभ्यां नमः शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः विधियवरान्ते शेरवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शताब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये इदानीं मंगलकर विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ मेषमासे कृष्णपक्षे अस्यां वर्तमानायां त्रयोदश्यां शुभतिथौ वासरस्तु भृगुवासर संयुक्तायां उत्तर प्रोत्थपदा नक्षत्र संयुक्तायां माहेन्द्र योग संयुक्तायां तैतुल करण संयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण सकल सद्गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री सिद्धिविनायक स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन श्री रामलिंग चौडेश्वरी अंबिकायाः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन च எல்லாருக்கும் ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் இருக்கு. எல்லாரும் அவங்களுடைய கோத்திரம் பேரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்கள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாருடைய நட்சத்திரம் ராசி பேரு எல்லாம் குழந்தைங்களுடையும் எல்லார் பேரும் மனசுலயே நினைச்சுக்கோங்க. வெளியே சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. கோத்திரம் பேரு முதல்ல சொல்லிக்கணும். அப்புறம் வீட்டில் இருக்கவங்க பெரியவங்கள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லார் பேரும் லைனா மனசுலயே நினைச்சுக்கோங்க. நட்சத்திரம் ராசி தெரிஞ்சா இல்லைன்னா பரவாயில்ல. सह कुटुंबानां सह बंधु मित्र स्नेह वर्गानां सर्वेषां इष्ट काम्य अर्थ सिद्ध्यर्थं मनसा चिन्तित सकल कार्येषु जय बल प्राप्त्यर्थं अरोग दृढगात्र सिद्ध्यर्थं वेदोक्त शतायुष्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं शरीरे वर्तमान वर्तिष्यमान सकल रोग निवारण सिद्ध्यर्थं समस्त रोगाणां निवारण पूर्वं वेद उक्त शत आयुष्य प्राप्ति सिद्ध्यर्थं जातक रीत्या आदित्यादि नवानां गृहाणां शुभं आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं समस्त जातक दोष निवारण सिद्ध्यर्थं कुटुंबे विद्यमान बाल बालिकानां सकल विद्या पारंगता सिद्ध्यर्थं सरस्वती कटाक्ष अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं परीक्षासु प्रथम श्रेणी अवाप्ति सिद्ध्यर्थं कुटुंबे विद्यमान युवानां युवतीनां उद्योग व्यापार अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं सर्वेषां कुल आचार प्रकारेण कल्याण उद्वाह प्राप्त
प्राप्ति सिद्ध्यर्थम सर्वेषां सत् पुत्र संतान प्राप्ति सिद्ध्यर्थम सर्वेषां काशी रामेश्वर प्रयागराज इत्यादि समस्त पुण्यस्थल दर्शन तीर्थ स्नान पुण्यफल अवाप्ति सिद्ध्यर्थम दैव चिंतन प्राप्ति सिद्ध्यर्थम दैव भक्ति अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम समस्त सन्मंगलानि अवाप्ति सिद्ध्यर्थम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती त्रिगुणात्म स्वरूपिणी दीपलक्ष्मी देव्याः अनुग्रह प्रसाद फलसिद्ध्यर्थम श्री रामलिंग चौडेश्वरी अंबिकाया आलये अनुष्ठीयमान त्रिपक्ष यजन मंडल अभिषेक पूर्ति महोत्सव अंग विहित श्री दीपलक्ष्मी पूजा पुरस्सर ललिता सहस्रनाम अर्चनम कुंकुम अर्चनम च अद्य करिष्ये तत् अंगत्व विहित समस्त विघ्नानां निवारण सिद्ध्यर्थम गणपति प्रार्थनां च अद्य करिष्ये लक्ष्मी विनायक பெருமான பிரார்த்தனை செய்யுங்க எந்த ஒரு தரங்களும் இல்லாம தீப பூஜை பிரார்த்தனை महागणपतये स्वाहा परां भाग्यं दत्वा यदि संयोज्य शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च எல்லாரும் தீபம் ஏத்திக்கலாமா ஒரு எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பூவை எடுத்து தீபத்துக்கு பூஜை பண்ண பூனால பூஜை பண்றது லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்லும் போது குங்குமத்தினால அர்ச்சனை பண்ணணும் அது வரையும் பூதான் ஹரியாம்பதா மகாலட்சுமீம் புரோக்ஷ்ய அனந்தாய நமஹ ஓம் தர்மாய நமஹ ஓம் ஞானாய நமஹ ஓம் வைராக்யாய நமஹ ஓம் ஐஸ்வர்யாய நமஹ ஓம் பத்மாய நமஹ தன்மத்யே தீபலக்ஷ்மியாசனாய நமஹ தீபலக்ஷ்மி மூர்த்ததே நமஹ கையில புஷ்பத்தை வச்சுட்டு லக்ஷ்மியுடைய திருவுருவத்தை மனசால நினைச்சுக்கோங்க ரெண்டு பக்கம் கஜம் இருக்கிற மாதிரியும் आचमनीयं समर्पयामि स्नापयामि स्नानानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि वस्त्र उत्तरीय आभरणार्थे अक्षतानि समर्पयामि दिव्य परिमल गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थं हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि पुष्प मालिका समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः दीपलक्ष्मी नमः दीपदुर्गायै नमः दीपसरस्वत्यै नमः सकल आराधनैः सुवर्जितम् வேதில் இருக்கக்கூடிய பழம் தாம்பூலத்தை நைவேத்தியம் பண்ணிக்கோங்க அம்பாளுக்கு பாக்கியம் தூபமாக்ராபயாமி फलताम्बूलादिकं निवेदयामि
आयतनवान् भवति वेदोक्त मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सुवर्णपङ्कजानि समर्पयामि समस्त राजोपचार देवोपचार भक्तोपचार श्रद्धोपचार पूजां समर्पयामि देवीं प्रार्थ्य देवी गौरी जगन्माता जगदानन्दकारिणी ललिता सहस्रनामार्थम् अनुज्ञां देहि मे शिवे इति सम्प्रार्थ्य कुङ्कुमैः अर्चयेत् கையில அவ்வளவு பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் கையில குங்குமம் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு காலி தொன்னையும் கொடுத்துருப்பாங்க முழுசா இருக்கக்கூடிய தொன்னையில இருந்து காலி தொன்னையில அர்ச்சனை பண்ணிக்கணும் கடைசியா அம்பாள் கிட்ட பாதத்துல சேர்த்துட்டா போதுமானது எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அம்பாளுக்கு நமஹா அப்படின்னு சொல்லும் போது குங்குமத்தினால அர்ச்சனை பண்ணணும் सिंदूराभां त्रिनेत्रां अमृतकलधरां शेखरीं रक्तवस्त्रां पिनोत्तुङ्गप्रवृत्तस्तनभरणमिदां यौवनारम्भरूढां नानालङ्कारयुक्तां सरसिजनिलजां वीरसङ्क्रान्तमूर्तिं देवीं पाशाङ्कुशाढ्याम् अभयवरकरां विश्वयोनिं नमामि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओम श्री महाराज्ञे नमः ओम श्रीमत्सिंहासनेश्वर्ये नमः ओम चिदग्निकुण्ड सम्भूताये नमः ओम देवकार्यमुद्यताये नमः ओम बुद्धिर्भानुसहस्राभाये नमः ओम चतुर्बाहुमन्विताये नमः ओम रागस्वरूपपाषाढ्याये नमः ओम क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलाये नमः ओम मनोरूपेक्षकोदण्डाये नमः ओम पञ्चतन्मात्रसाधिकाये नमः ओम विचारणप्रभापूर्वमज्जब्रह्माण्डमण्डलाये नमः ओम चपकाशोकपुण्णाभिसौगन्धिकलसत्कजाये नमः ओम गोविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिताये नमः ओम अट्टमीन्द्रविभ्राजदलितस्थलशोभिताये नमः ओम भद्रकलङ्कामकनाभिषेकाये नमः ओम उदस्परमाङ्गल्य गृहतोरणशिलिकाये नमः ओम वक्रवृत्तिमी परिवाहगणमीनाभलोचनाये नमः ओम नवसमन्दविराजनाये नमः ओम ताराकान्तितिरस्कारी नानावर्णभास्वराये नमः ओम कदम्बमञ्जरी मुद्गकर्णपूर्णमोहराये नमः ओम कादम्बमण्डलाये नमः ओम ओम संपत्ति समारोह सुंदर भजदेंदानी ओम शरणोदा सिद्धांत भगवान विरामदानी ओम पुराणार्थानुण समाज वैष्णदानी ओम गीतप्रतारुण भजने भजदेंदानी ओम गीतप्रतारुण धर्मादा प्रसुदानी ओम डोलामानका कृतमणिकागार भजगानी नमः ओम भंड सैन्य वधोत्कृत शक्ति विक्रम हंसिदानी ओम विज्ञान पराक्रमानोम निरीक्षण संसदानी ओम बडपुत्रमदुरित बालाविक्रम हंसिदानी नमः ओम मंत्रन्यंबा वृद्धंग वध तोषिदा जीवं शुद्धोकान हरण वाराही वीरनंदिता जीवं कामेश्वर मुखालो विद्रश्री गणेश्वर जीवं महागणेश्वर भेंड विघ्नयंत्र प्रहरिता जीवं भंडासुरेंद्र विमल शस्त्रप्रत तिस्रवृषिणी नमः करांग नगोत्पन्न नारायण साकुज्ञे नमः करांग नगोत्पन्न नारायण साकुज्ञे नमः महाभारतास्त्राग्नि नगद्धासुर सीनिका जीवं कामेश्वरास्त्र नगद्ध भंडासु सुजगा जीवं ब्रह्मोपेंद्र महेंद्रानि देव संस्कृत वैभवा देवामरणेत्रादि सुगंध काम सिद्ध नौषधी नमः
ओम श्रीमद्वाग्भवकूटेक स्वरूप मुखमंगजानी नमः गंगाधरकटिपर्यंत बुद्धकूट स्वरूपिणी नमः शुद्धिकूटेकदापट्टगत्यर्थो भागदारिणी नमः मूलमंत्रान्तिकानी नमः कुलकोटत्रे कलयपराधी नमः गुलामदेव रसिकादी नमः कुलसंकेत पालिनी नमः कुलांगरादी नमः कुलांगस्थानी नमः गोलिन्ये नमः कुलजोगिन्ये नमः मुकुलादी नमः समयान्तस्थादी नमः समयाचार तत्परादी नमः मूलाधारे निलयादी नमः ब्रह्मग्रंथि भेदिन्ये नमः मणिपुरांतरग्रादी नमः विष्णुग्रंथि विभेदिन्ये नमः अज्ञानक्रांतरास्थादी नमः रुद्रग्रंथि विभेदिन्ये नमः सहस्राराम उदारूढादी नमः सहस्रारा विभृषिन्ये नमः नमः महालक्ष्मी नमः कुंडलिन्ये नमः विशदन्तनीयसि भवान्ये जादी नमः भव भाग्यदादिन्ये नमः भक्तिप्रियादे नमः भक्तिगम्यादे नमः भक्तिवश्यादे नमः भजापहादे नमः शाम्भवी नमः शर्मदादिन्ये नमः शांकर्ये नमः श्रीकर्ये नमः साध्ये नमः शरच्चंद्र निभाननादे नमः शतोदये नमः शांतिमत्ये नमः निराधारादे नमः निरंजनादे नमः निर्लेपादे नमः निर्मलादे नमः नित्यादे नमः निराकारादे नमः निराकुलादे नमः निर्मेपादे नमः निर्मलादे नमः नित्यादे नमः निराकारादे नमः निराकुलादे नमः निर्मलादे नमः निष्कलादे नमः शांतादे नमः निष्कामादे नमः निर्वक्तवादे नमः नित्यमुक्तादे नमः निर्विकारादे नमः निष्प्रबन्धादे नमः निराश्रयादे नमः नित्युष्ठादे नमः नित्युत्थादे नमः निरोध्यादे नमः निरन्तरादे नमः निष्कारणादे नमः निष्कलङ्कादे नमः निरुपाधने नमः निरीश्वरादे नमः निरागादे नमः रागवसने नमः निर्मदादे नमः मदनाशिने नमः निश्चिन्तादे नमः निरहङ्कारादे नमः निर्मोहादे नमः मोहनाशिने नमः निर्ममादे नमः ममताहन्त्रे नमः निष्पापादे नमः पापनाशिने नमः निष्क्रोधादे नमः क्रोधसंज्ञे नमः निर्लोभादे नमः लोभनाशिने नमः निसंशयादे नमः सतरिज्ञे नमः निर्भवादे नमः भवनाशिने नमः निर्विकल्पादे नमः निराबाधादे नमः निर्भेदादे नमः भेदनाशिने नमः निराशादे नमः प्रतिमसंज्ञे नमः निष्कृजादे नमः निष्परिग्रहादे नमः निस्तुलादे नमः नीरचिकुरादे नमः निरपाजादे नमः निरत्यदादे नमः दुर्लभादे नमः दुर्गमादे नमः दुर्गादे नमः दुःखहन्त्रे नमः सुखप्रदादे नमः धृतदूरादे नमः दुराचारशमन्ये नमः दोषवर्जितादे नमः सर्वज्ञादे नमः सान्द्रकरुणादे नमः समानाधिकवर्जितादे नमः सर्वशक्तिमन्ये नमः सर्वमङ्गलादे नमः सद्गतिप्रदादे नमः सर्वेश्वर्ये नमः सर्वमन्ये नमः सर्वमन्त्रस्वरूपिण्ये नमः सर्वयन्त्रात्मिकादे नमः सर्वतन्त्ररूपादे नमः मनोन्मन्ये नमः माहेश्वरी नमः महादेव्ये नमः महालक्ष्मी नमः वृषप्रजादे नमः महारूपादे नमः महापूज्यादे नमः महापातकनाशिन्ये नमः महामायादे नमः महासत्त्वादे नमः महाशक्ति नमः महारत्ने नमः महाभोगादे नमः महेश्वर्यादे नमः महाविद्यादे नमः महाबलादे नमः महाबुद्धे नमः महासिद्धे नमः महायोगेश्वरेश्वरी नमः महापुत्रादे नमः महामन्त्रादे नमः महायन्त्रादे नमः महाफलादे नमः महाजाक्रमाराध्यादे नमः महाभैरवपूजितादे नमः महेश्वर महाकल्प महाकांडव साक्षिण्ये नमः महाकामेश्वर महेश्वरी नमः महात्रिपुरसुन्दर्ये नमः चतुष्षष्टिपदानाध्यादे नमः चतुष्षष्टिकलामये नमः महाचतुष्षष्टिकोटि योगिनीगणसेवितादे नमः मणोविद्यादे नमः चन्द्रविद्यादे नमः चन्द्रमण्डलभञ्जनादे नमः चारुरूपादे नमः चारुहासादे नमः चारुचन्द्रकलाधरादे नमः चराचर जगन्नाथादे नमः चक्रराजनिकेतनादे नमः पार्वती नमः पद्मनगरादे नमः पद्मराजप्रभादे नमः मित्रप्रेतासनासीनादे नमः पंचब्रह्मस्वरूपिण्ये नमः चिन्मये नमः ब्रह्मानन्दादे नमः विज्ञानघनरूपिण्ये नमः ध्यानध्यातुध्येयरूपादे नमः धर्माधर्मविवर्जितादे नमः स्वरूपादे नमः जागरण्ये नमः सुपद्ये नमः तेजसात्मिकादे नमः सुप्तादे नमः प्राज्ञात्मिकादे नमः दुर्गादे नमः सर्वावस्थानवर्जितादे नमः जटिकर्ते नमः ब्रह्मरूपादे नमः गोप्त्रे नमः गोविन्दरूपिण्ये नमः ब्रह्मारण्ये नमः रुद्ररूपादे नमः तिरोधानकर्ते नमः ईश्वर्ये नमः सदाशिवादे नमः मनुग्रहणादे नमः पंचकृत्यपराजनादे नमः भागमन्त्रसिद्धादे नमः भैरव्ये नमः भगमालिन्ये नमः पद्मासनादे नमः भगवती नमः पद्मनाभसहोदर्ये नमः उमेशविश्वोत्पन्नविपन्नभुवनावल्ये नमः सहस्रशीर्षवदनादे नमः सहस्राक्षी नमः सहस्रवदे नमः महाब्रह्मगीतजनन्ये नमः वर्णाश्रमविदायिन्ये नमः विराज्ञारूपनिगमादे नमः पुण्यफलप्रदादे नमः श्रुतिसीमन्तसिद्धूरीकृतपादाब्ज धूलिदादे नमः सकलानमः सिद्धोह शुद्धिसम्पुटमौक्तिकादे नमः मृडार्थप्रदादे नमः पूर्णादे नमः भोग्ये नमः भुवनेश्वरे नमः विदादे नमः अनादिनिधनादे नमः मणिब्रह्मेन्द्रसेवितादे नमः नारायणे नमः नादरूपादे नमः नामरूपविवर्जितादे नमः भीमकादे नमः भीमते नमः विद्यादे नमः हेतोपादे वर्जितादे नमः राजराजार्चितादे नमः राज्ञे नमः प्रज्ञादे नमः
राजीव लवदराजीनो रंजनेन ममनेनो लस्याजीनो राकिंके नेगलाजीनो रमाजीनो हावो काकेंद्र वदनाजीनो मतिरूपाजीनो मतिप्रियायं रक्षाकर्तीनो राक्षसज्ञीनो रामाजीनो रमलं पडाजीनो काम्याजीनो कामकला रूपाजीनो कदंबसोंत्रियाजीनो कल्याणीनो हावो जगती कंदाजीनो गुरुनाथ सागराजीनो कलावतीनो कलालापाजीनो कांताजीनो कादंबरी प्रियाजीनो वरदाजीनो हावो वामनजनादीनो वर्णिमलस्कलादीनो शाटिकादीनो वेदविद्यादीनो विद्यादिवासिनीनो धात्रीनो वेदजननीनो उत्तमादादीनो हावो विराजिनीनो क्षेत्रस्वरूपादीनो क्षेत्रेशीनो क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनीनो क्षेत्रनिर्मुक्तादीनो क्षेत्रवासवच्चिदादीनो विद्यादीनो हावो विमलादीनो विद्यादीनो मुद्दादिनवत्सलादीनो वाग्वादीनो देशीनो निमंडलवासिनीनो भक्तिमत्तप्रतिनादीनो हावो पशुपाशे मोतिनीनो संपदासे ढपालंदादीनो दादार प्रवर्तिदादीनो कापुत्रयादीनो गद्दमात्लादीनो दुर्नीनो हावो तापसाराध्यादीनो द्रवध्यादीनो तमोपहादीनो चित्तीनो तत्पदलक्ष्यार्थादीनो चिदेकस्वरूपिणीनो गत्वाञ्जलविभूत ब्रह्माज्ञानंद संततीनो हावो परादीनो प्रत्यक्षतीरूपादीनो पश्यतीनो प्रदेवतादीनो मध्यमादीनो हावो वैखरी रूपादीनो भक्तमान अंसिकादीनो कामेश्वर प्राणनादीनो मृदज्ञादीनो कामपूजितादीनो हावो शृंगार रस संपूर्णादीनो धिरादीनो जालंधर स्थितादीनो मूर्त्यादीनो समंडल वासिनीनो रोहदा क्रमाराध्यादीनो हावो रसस्तर्पणतर्पिदादीनो सत्यप्रसादिनीनो विश्वनाक्षिणीनो साक्षिवतिदादीनो षडङ्ग देवतायुक्तादीनो षड्गुण्य परिपूर्णादीनो नित्यगुणादीनो हावो निरुपमादीनो नित्यादीनो नित्यासोरस्तारूपादीनो श्रीकण्ठार्थ शरीरिणीनो प्रभावतीनो हावो प्रभारूपादीनो सिद्धादीनो परमेश्वरीनो मूलप्रकृतीनो व्यक्तादीनो घटाव्यक्तस्वरूपिणीनो व्यापिनीनो विधाकारादीनो हावो विद्याविद्यास्वरूपिणीनो महाकामेश्वरीनो मुदाह्लाद गौमुदीनो भक्ताहारमोपेत भावसन्ततीनो हावो शिवदूतीनो शिवाराध्यादीनो शिवमूर्तीनो शिवङ्करदीनो शिवप्रियादीनो शिवपरादीनो शिष्टेट्टादीनो शिष्टपूजितादीनो अप्रमेयादीनो सुप्रकाशादीनो मनोवाचां गोचरादीनो चित्तीनो हावो चेतना रूपादीनो जगशक्तीनो जडात्मिकादीनो गायत्रीनो व्याहृतीनो सध्यादीनो द्विजवृन्दसेवितादीनो तत्त्वासनादीनो ओम तस्मै नमः तुभ्यं नमः मदी नमः मत्तकोशान्तरस्थितादीनो निसीमो हिन्नेमो नित्ययोगनादीनो मद शालिनीनो मद भूर्नितरक्ताक्षीनो मद पाददण्डभुवेनो चन्दनन्दर दिग्धाङ्गीनो चापे विष्णुप्रियादीनो कुशलादीनो कोमलाकारादीनो कुरुकुलादीनो कुलेश्वरीनो महावो कुलकुण्डालजादीनो कौलमार्गप्रसेदादीनो व्यापिनीनो विविधाकारादीनो विद्याविद्यास्वरूपिणी नमः कुलेश्वरीनो कुलकुण्डालजादीनो कौलमार्गप्रसेदादीनो कुमारगणनाथाम्बादीनो पुष्टेनो पुष्टेनो मतीनो धृतीनो शान्तीनो सत्यवतीनो कान्तीनो नन्दिनीनो विघ्ननाशिनीनो तेजोवतीनो गणनायीनो लोलाक्षी कामरूपिणीनो मालिनीनो सिंहीनो मात्रे नमः मलयाजवासिनीनो सुखीनो नलिनीनो सुब्रह्मण्यनो शोभनादीनो सुवर्णादिदादीनो कालकण्ठीनो कान्तिवतीनो शोभिनीनो सूक्ष्मरूपिणीनो वज्रेश्वरी नमः वामदेवीनो योगस्थायवतिदादीनो सुदेश्वरीनो सुविद्यादीनो सिद्धमात्रेनो विशस्तीनो विशुद्धिप्रलयादीनो अवस्तरनादीनो महापुत्रलोचनादीनो खड्वाङ्गादिप्रहरणादीनो मदनैकस्मण्डिदादीनो पायसानप्रजादीनो तत्स्थादीनो कुशलोकभयङ्करीनो मृदात् महाशक्तिमृदादीनो डाग्नीश्वरीनो महावो अनाहदाभिलयादीनो श्यामाभादीनो मदनध्वजादीनो पुरुषोज्ज्वलादीनो अक्षमालादिधरादीनो रुधिरसंस्थितादीनो कालरात्र्यादिष्णोदर्दादीनो श्लोधनप्रियादीनो महावीर्येन्द्रवरादीनो डाकिन्यम्बास्वरूपिणीनो मणिपुरादिगजादीनो मदनत्रयसंस्थितादीनो मद्रादिगाधूमेतादीनो डाबर्याद्विरागतादीनो उत्तमन्नादीनो मांसनिष्ठादीनो गुणान्नप्रीतमानसादीनो समस्तभक्तसुखदादीनो डाकिन्यम्बास्वरूपिणीनो स्वधिष्ठानां जगदादीनो चतुर्वज्रमनोहरादीनो शूलाध्यात्मसम्पन्नादीनो पीतवर्णादीनो अधिकर्मितादीनो मेधोनिष्ठादीनो मधुप्रीतादीनो गन्धिन्यासमन्वितादीनो दध्यन्नासक्तहृदयादीनो नमः काकिनीरूपधारिण्यीनो मूलाधारामुदारूढादीनो मित्रपुत्रादीनो अस्थिसंस्थितादीनो